Okay. So we had discussed the first two functions of management so far, planning and organizing. Organizing. The next function of management is staffing. Right. Now, what is staffing? Staffing, as the name suggests, deals with the human resource, with the staff. Right. There are three types of resources required in any kind of work: physical resources, financial resources, and human resources. Right. Physical resources like machinery, furniture, building, etc. Financial resources means money, and human resources means employees, the managers, the owner, the human resource. Right. Out of these three resources, physical, financial, and human, which one do you think is the most important and why? Human Sir, resource. human resource. Why? Sir, because human resource can turn other resources like financial resources or material resources into useful things. Yes. Human resource is the most important resource for any organization, since it is the humans who manage all the resources and do the work required for successful accomplishment of objectives. Right? Physical resources को भी humans ही manage करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, फंड्स को भी ह्यूमंस ही मैनेज करते हैं, और दूसरे ह्यूमंस को, दूसरे एम्प्लॉइज को भी ह्यूमंस मैनेज करते हैं, मैनेजर्स मैनेजिंग देयर सबऑर्डिनेट्स, इजंट इट? सो ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स have each human being has a different set of emotions, interests, feelings, ambitions, likes, dislikes. So dealing with human resource becomes all the most important because they are not like physical or financial resources. Financial resources are all alike. आप 2000 के जितने मर्जी करेंसी नोट्स ले लो, सब अलाइक होंगे. 100 के जितने भी करेंसी नोट्स ले लो, अलाइक होंगे. Similarly, physical resources, buildings more or less made of same material, design may be different, right? Human resources, each human being is unique. So human resource and human resource management are very important. Human resource management is also called personnel management. Human resource को personnel भी कहते हैं. Also called manpower management. Clear? Yes, sir. So human resource management may be defined as planning, organizing, directing and controlling. मैनेजमेंट में यही होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक स्टाफिंग भी होता है, लेकिन स्टाफिंग क्योंकि एक खुद में स्पेशलाइज्ड फंक्शन है तो उसे हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहे हैं. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग व्हाट? द ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड एक्टिविटीज. सो प्लानिंग, organizing, directing and controlling various personnel activities of procuring, developing, compensating, maintaining and utilizing the workforce in such a manner that organizational goals are effectively and economically achieved. Procuring मतलब arrange करना, developing मतलब training देकर employees को की skills को develop करना, enhance करना. कॉम्पेंसेटिंग मतलब उन्हें अच्छी प्रॉपर रेम्यूनरेशन देना, सैलरी देना. मेंटेनिंग, एफिशिएंट इफेक्टिव एम्प्लॉइज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रखना, कि खुश रखना, सो दैट दे डोंट लीव आवर ऑर्गेनाइजेशन. एंड यूटिलाइजिंग द वर्कफोर्स, और फिर उनसे काम करवाना इस तरह से कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली अचीव हो सकें. इज दिस डेफिनेशन क्लियर? Yes, sir. Okay. Managerial function of staffing involves filling job positions in the organization structure. You remember organizing में हमने डिस्कस किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है.
the general manager, then departmental managers, below them maybe assistant managers, then supervisors, then workers. With staffing, Yes, sir. these job positions that were created in the organization structure, they get filled through staffing. So staffing involves filling job positions in the organization structure with suitable personnel through effective recruitment. Recruitment मतलब एम्प्लॉइज को इनवाइट करना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वेकेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए, सिलेक्शन फिर उनमें से सूटेबल एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करना, चूज करना, एंड देन ट्रेनिंग देम, गिविंग देम प्रॉपर ट्रेनिंग सो दैट दे कैन डू देयर जॉब प्रॉपरली फॉर विच दे हैव बीन selected. So it is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce. Clear? अब हमने दो चीजों की बात की यहाँ पर. पहले हमने बात की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर हमने बात की स्टाफिंग. Now there are two viewpoints. One viewpoint is that staffing is same as human resource management. So in that context, staffing term is used in a broad sense, human resource management. But there is a narrow sense also in which this staffing term is used, which is limited to recruitment, selection and training. Means employees को invite करना, apply करने के लिए jobs के लिए, उनमें से most suitable को choose करना और फिर उन्हें proper training दे देना. This is narrow or traditional meaning of staffing. इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और क्या क्या होता है, या ब्रॉड मीनिंग ऑफ स्टाफिंग में और क्या क्या होता है? कॉम्पेंसेशन अभी हमने डिस्कस किया, कॉम्पेंसेशन देना प्रॉपर, उनकी परफॉर्मेंस का को इवैल्यूएट करना, हाउ वेल दे आर वर्किंग, गिविंग देम इंसेंटिव्स, डिजाइनिंग इंसेंटिव पैकेजेस, ठीक है, प्रिपेयरिंग रिटायरमेंट प्लान्स and many more things, job evaluation. These are some specialized activities which are included in human resource management, or we can say in broad meaning of staffing. So generally जब हम staffing कहेंगे हम broad sense में use करेंगे, meaning same as human resource management. Is this clear? The two viewpoints, broad sense of staffing and narrow? Yes, sir. Okay, good. Now we come to features of staffing or human resource management. First feature, it is a pervasive function. Pervasive means? Sir, has a wider range. Required everywhere, in all the departments of the organization, at all the levels of organization, in all the organizations. So staffing is required everywhere. Human resource management is required everywhere. Second feature, concerned with people. Now this is the most important feature of staffing, concerned with people. What is so special about it? I just told you. Speciality about human beings is that each human being is unique. Each human being has different needs, emotions, sentiments, likes, dislikes, motivation level. So a good knowledge of psychology is required to manage the human resources. Clear? Yes, sir. Next feature is that it extends beyond personnel department. इसका क्या मतलब है? इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम. Do we have a counselor in the school? Yes, sir. Yes. Yes, sir. When all subject teachers and class teachers are there, then why do we need a separate counselor? Sir, so students understand value of some things and about discipline. Because there are some specialized services which the counselor can give more effectively because he or she is trained in that, right? So
the regular counseling subject or class teachers can give, but when some such issue comes which they are not able to handle themselves or they find it difficult to handle, then they can refer the child to the counselor. Sometimes the child himself or herself may not feel very comfortable discussing with the subject or class teacher when it comes to personal issues and may prefer to discuss with the counselor. So we need a separate counselor. Now I turn the question around. When there is a counselor in the school, do subject and class teachers need to cater to the counseling of students? Yes or no? Are you able to hear me? Yes, sir. तो अगर स्कूल में अलग से काउंसलर है तो क्या बाकी टीचर्स को भी काउंसलिंग करने की जरूरत है या नहीं है? Sir, it is needed because one teacher can't be there for all the students. Yes, because one counselor or maybe two counselors cannot handle the problems of all the students of the school. That is one reason. Second reason, whatever small problems come, those can be handled or the students can be counseled related to them at the level of subject teachers or class teachers only effectively, because the teachers, class teachers and subject teachers know the students better because they are dealing with those students on a regular daily basis. So that is also there. Another thing is, some students may feel more comfortable in discussing their problems with some subject teacher or class teacher when it comes to personal problems also, instead of discussing with a counselor who may be a stranger to them. So subject teachers and class teachers also need to do counseling. When some student comes to a teacher and that teacher feels that no, I am not able to deal with this problem, or I am not able to give good suggestion, then the teacher may advise the student to go to the counselor, right? Plus, there are certain specialized activities like aptitude testing of the students. Suppose some 10th class students want to know which stream will be good for them in class 11 based on their aptitude. So the counselor can conduct an aptitude test and tell them on the basis of that test which stream will be better for them. So that is a specialized activity in which the counselor specializes. Other teachers may not be knowing about such tests. So both are required. Similarly, in an organization, in most of the good companies, big companies, there is a separate human resource department, HRD. ठीक है, हमारी गवर्नमेंट में भी एक सेपरेट मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री. Who is the minister, human resource minister? Sir, Smriti Irani. स्मृति ईरानी तो बहुत पहले थी, and she was a very good human resource minister. Presently, Sir, Mr. Ramesh Pokhriyal is the human resource minister. ठीक है? तो Okay. गवर्नमेंट में भी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री है, ऐसे ही कंपनीज में भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, लेकिन स्टाफिंग के जो रूटीन काम है, एम्प्लॉयज को गाइड करना है, क्या काम करना है, उन्हें थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग देनी है, अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉयज को गाइड करना है, ये डे टू डे बेसिस पर हर डिपार्टमेंट में हर मैनेजर ने करना है. सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम नहीं है ये. They cannot handle manage all the employees of all the departments. Every manager needs to manage employees in his or her department. So it extends beyond personnel department. But there are some specialized human resource activities for which the services of personnel department, separate personnel department are also required. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now, importance or benefits of staffing or human resource management. First,
It helps in finding and selecting competent personnel. Competent मतलब Sir, you mean competent? be a bit louder. बहुत धीरे आवाज आ रही है तुम्हारी. Sir, you mean competent? Competent means efficient and Having effective. necessary ability or knowledge Yes. of something. Yes. Who are highly efficient and effective. तो अगर प्रॉपर स्टाफिंग होगी तभी हम प्रॉपर कैंडिडेट्स को अच्छे से साइंटिफिक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सेलेक्ट कर पाएंगे. सेकंड, परफॉर्मेंस इज इंप्रूव्ड बाय पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनमें से एक भी राइट अगर रॉन्ग हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का बंटाधार हो सकता है. इफ वी हैव रॉन्ग पीपल मींस people who are not suitable for the work they are doing, who are not capable, who are not efficient. अगर ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएं तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती. और मे बी वी हैव वेरी हाईली डेडिकेटेड एफिशिएंट पीपल बट एट द रॉन्ग जॉब. मतलब जिस जॉब के लिए वो सूटेबल हैं वो जॉब ना देके उन्हें हमने कोई ऐसी जॉब दे दी जो जिसमें वो उतना केपेबल नहीं है. अगेन परफॉर्मेंस कैन नॉट बी गुड. थर्डली, राइट टाइम. जिस टाइम हमें जिस स्टाफ की जरूरत है, जिस तरह के स्टाफ की जरूरत है, अगर राइट टाइम पे वो स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो यूजलेस हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, हमें ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी के लिए जब एक थ्रेट है कि कुछ अटैक हो सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे, उस टाइम हमें ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल की जरूरत है. उस टाइम हम सिक्योरिटी पर्सनल ना बढ़ाएं. ठीक है, हम उसमें उनकी सिलेक्शन प्रोसेस में इतना टाइम लगा दें कि उतने में कोई अटैक करके ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा जाए, तो वो यूजलेस हो जाएगी एक्टिविटी. सो दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट. राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट टाइम. ठीक है. सपोज स्कूल में लेट अस से सम टीचर लीव्स द जॉब, तो वैकेंसी हो गई. अब स्कूल वाले अगर नेक्स्ट टीचर को अपॉइंट करने में, एक अच्छे टीचर को अपॉइंट करने में 3-4 महीने लगा दें, कई बार हो जाता है ऐसा, तो क्या होगा? स्टूडेंट्स का तो कितना नुकसान हो गया कितने टाइम तक. इफ वन टीचर हैज लेफ्ट, द नेक्स्ट टीचर नीड्स टू बी अपॉइंटेड विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज. ठीक है, मैक्सिमम 15-20 डेज, लेट अस से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मंथ. लेकिन अगर इतना टाइम, आइडियली विद इन 5-10 डेज, अगर इतना लंबा टाइम हो जाएगा तो दैट विल बी रॉन्ग टाइम, रॉन्ग टाइमिंग. ठीक है, फिर सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा टाइम पर. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. हेल्प्स इन मेंटेनिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड. क्योंकि जब हम स्टाफिंग करते हैं तो हम एस्टिमेट करते हैं कितने एम्प्लॉयज हमें चाहिए, किस किस स्किल वाले. ठीक है, और उतने एम्प्लॉयज के लिए हम पहले से अरेंजमेंट करके रखते हैं. टाइमली हम उनकी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कर लेते हैं, सो दैट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज देयर. अगर प्रॉपर स्टाफिंग नहीं होगी तो हो सकता है कभी ऑर्गेनाइजेशन में अंडर स्टाफिंग हो जाए, जितने लोग चाहिए अवेलेबल ही नहीं है, तो डिले हो रहा है काम में, जो हैं लोग वो ओवरबर्डन है. दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ओवर स्टाफिंग, की जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो कई एम्प्लॉयज तो खाली बैठे हैं, दे आर सिटिंग आइडल, डोंट हैव मच वर्क टू डू. तो ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए और ये इंश्योर करती है प्रॉपर स्टाफिंग, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. हम पहले से प्लान करके चलते हैं हाउ मच वर्क इज देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर दैट वर्क हाउ मेनी पीपल एंड व्हाट विद व्हाट क्वालिफिकेशंस, व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड. और पहले से हम प्लान बना के चलते हैं, उन्हें रिक्रूट सेलेक्ट करके चलते हैं, सो दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी डू नॉट फेस शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ स्टाफ. एक्सेस थोड़ी सी हो तो अच्छी बात है, बल्कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस थोड़ा सा एक्सेस स्टाफ तो रखती हैं, सो दैट इफ सम एम्प्लॉयज आर ऑन लीव ऑन अ पर्टिकुलर डे, होता है रोज कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज लीव पे होते हैं, तो अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टाफ है तो किसी पे बर्डन नहीं आती काम की और सारा काम स्मूथली चलता रहता है. लेकिन बहुत एक्सेस नहीं होनी चाहिए, वो वेस्टेज हो जाएगी. इज दिस पॉइंट क्लियर?
Yes, sir. इसी तरह से हर साल प्लानिंग होती है कि इस साल कितने एम्प्लॉयज रिटायर होने वाले हैं, कितनों ने रेजिग्नेशन दे दिया और वो जाने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फर्दर रिक्रूटमेंट्स और सिलेक्शन उनके रिटायर या लीव करने से पहले ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस कर लेती हैं। और इनफैक्ट वो कोशिश करते हैं कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ेंगे उससे एटलीस्ट 1 महीना पहले ही न्यू एम्प्लॉय को ज्वाइन करवा लिया जाए। क्यों? ताकि उस 1 महीने में वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो छोड़कर जा रहे हैं उनके साथ बैठ के काम को सीख ले अच्छे से कि कैसे करना है, और जब वो पुराने वाले एम्प्लॉय छोड़कर जाएं तो इसको एडजस्ट होने में टाइम ना लगे। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस पहले वाले एम्प्लॉय के जाने से कई दिन पहले से ही न्यू एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लेती हैं। It provides or improves job satisfaction of employees. अगर एम्प्लॉयज को प्रॉपर इंसेंटिव्स मिलेंगे, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेज होगी, इवेल्युएट होगी, तो उन्हें पता है कि उनके हार्डवर्क को रिवार्ड किया जाता है। दे विल वर्क विथ फुल डेडिकेशन एंड दे विल बी हाईली सेटिस्फाइड। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. रिस्पॉन्स दे दिया करो। दृष्टि, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रिस्पॉन्स डिस्कनेक्ट हो गई है क्या? वो माइक डिस्कनेक्ट हो गया है शायद दृष्टि का। ओके, रिस्पॉन्स दे दिया करो इमीडिएटली। प्रोसेस, अच्छा एक पॉइंट रह गया, फैसिलिटेट सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे, एफिशिएंट, सिंसियर, डेडिकेटेड एम्प्लॉयज होंगे, only then our organization can grow, not otherwise. Otherwise तो survive करना भी मुश्किल हो जाएगा, है ना? Now we come to process of staffing. What are the steps in the process of staffing? First step is estimating manpower requirement. This is also called personnel planning. What is it called? Personal plan. Ishan, what is it Yes, called? sir. Personal planning. Personnel planning or estimating manpower Yes, sir. requirement means to find out approximately how many and what type of persons are needed. जब हम कह रहे हैं what type does not mean in size and shape. What type means in terms of qualifications, in terms Qualifications, of experience, ability, skills, skills, interests. and interest. ठीक है? So how many and what type of persons are needed in the organization, and then preparing a detailed program for their recruitment, selection, training, etc. ठीक है? अब इस फर्स्ट स्टेप को फर्दर सब डिवाइड करते हैं 2-3 सब स्टेप्स में. First sub step is workload analysis, also called personnel requirement forecast. Workload analysis और personnel requirement forecast. इसमें हम क्या करते हैं? The number and type of total persons required. पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी जॉब पोजीशंस हैं, सभी डिपार्टमेंट्स में, सभी लेवल्स में, उसके बेसिस पे हम पता करते हैं टोटल कितने लोग चाहिए और किस टाइप के लोग हमें ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए. ठीक है? The type of persons, how do we come to know? We come to know on the basis of a specialized study called job analysis. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हमने बनाया उसमें हर जॉब को हम एनालाइज करते हैं. एनालाइज करके 2 स्टेटमेंट्स तैयार होती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. ठीक है? जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है? जो बताती है उस जॉब की नेचर, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक जॉब है रिसेप्शनिस्ट, तो उसकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? अटेंडिंग द विजिटर्स, attending phone calls, providing required information to the callers and to the visitors,
guiding the visitors where they need to go to get their work done. ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन हो गई, जॉब डिस्क्रिप्शन। और दूसरा है जॉब स्पेसिफिकेशन, अ लिस्ट ऑफ एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। मतलब उस जॉब के लिए जो कैंडिडेट हम सेलेक्ट करेंगे उसमें हमें उसकी कैसी एजुकेशन होनी चाहिए, कितनी एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, स्किल्स किस किस तरह की उसमें होनी चाहिए। दीज आर जॉब स्पेसिफिकेशन। अगर हम इसी जॉब की बात करें रिसेप्शनिस्ट की, तो क्या जॉब स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए इन योर ओपिनियन? Sir, should be fluent in languages that Very are good. needed, Fluent like in English. in at least 2 languages, I will say. One is the local mother tongue of that area, right? For example, Hindi in Delhi, and second English. तो फ्लुएंसी होनी चाहिए लैंग्वेजेस में, एक दो लैंग्वेजेस में, और पोलाइटनेस, पोलाइट बिहेवियर, Yes, sir. हेल्पफुल नेचर, सिंसेरिटी। सो दीज कैन बी जॉब स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, तो अब आप एक काम करना, क्लास के बाद न्यूज़पेपर में या वेबसाइट पे जॉब्स की एड्स देखना, जो एड आती है ना जॉब्स की जॉब वैकेंसी है, और उसमें देखना ये दोनों चीजें दी होती हैं। जिस जॉब की वो वैकेंसी होगी उस जॉब की कुछ ब्रीफ में ड्यूटीज भी दी होंगी, और क्या क्वालिटीज चाहिए कैंडिडेट में वो भी दिया होगा। तो आइडेंटिफाई करना कुछ एड्स में, जॉब वैकेंसी एड्स में, कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है उनकी। ठीक है, इस तरह की एक लिस्ट बनाना, जॉब टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, 5-6 जॉब्स का इस तरह से बनाना। तो इससे आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट? Yes, sir. नेक्स्ट सब स्टेप वर्क फोर्स एनालिसिस। पहला क्या था? फर्स्ट वन वाज वर्क लोड एनालिसिस, मतलब कितने लोग चाहिए टोटल। ये है वर्क फोर्स एनालिसिस, ऑल्सो कॉल्ड प्रिपेयरिंग पर्सोनेल इन्वेंट्री। मतलब एक रिकॉर्ड तैयार करना कि प्रेजेंटली कितने लोग हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग। ठीक है, सपोज 10 लोग टोटल चाहिए, 6 लोग ऑलरेडी हैं। वर्कलोड एनालिसिस से हमें पता चला वी रिक्वायर 10 पीपल। वर्कफोर्स एनालिसिस से पता चला वी ऑलरेडी हैव 6 ऑफ देम। तो दोनों को कंपेयर करके हमें पता चल गया नाउ हाउ मेनी मोर डू वी रिक्वायर। आंसर? Yes, sir. आंसर दो, कितने और चाहिए? अगर 10 में से 6 ऑलरेडी हैं, 4. यस 4, इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? 10 में से 6 ऑलरेडी हैं तो 4 और चाहिए। ठीक है, सो दिस इज वर्कफोर्स एनालिसिस। और उसके बेसिस पर फिर हम प्रोग्राम्स बनाते हैं कि कैसे ये एडिशनल 4 जो हमें पर्सन्स चाहिए कैसे रिक्रूट करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे, एंड सो ऑन। सो फर्स्ट स्टेप इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। क्लियर? Yes, sir. Next step, second step, after estimating the requirement, next comes recruitment. Recruitment means searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. मतलब कहां से हमें वो एम्प्लॉयज मिल सकते हैं सूटेबल, ये सोचना, और फिर उन्हें इनवाइट करना। सपोज हमें चाहिए फ्रेश मैनेजमेंट ट्रेनीज चाहिए, हमें फ्रेश मैनेजमेंट ट्रेनीज, तो बेस्ट प्लेस टू गेट देम फ्रॉम इज IIM, FMS, मैनेजमेंट स्कूल्स, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो वहां पर जाकर फिर हम एक नोटिस लगा देंगे और उसके थ्रू हम कैंडिडेट्स को एंकरेज करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, या फिर हमने सोचा कि हम न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट देंगे तो वो हमारी सोर्स हो गई, उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लोगों को इनवाइट करेंगे अप्लाई करने के लिए। दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। क्लियर? Yes, sir. आफ्टर रिक्रूटमेंट लोगों ने कर दिया अप्लाई, अब क्या करें? अब चूज करो
मोस्ट सुटेबल, जितने आपको चाहिए, ठीक है, 4 लोग हमें चाहिए, तो वो 4 मोस्ट सुटेबल, सपोज 80 पीपल हैव अप्लाइड, तो उन 80 में से मोस्ट सुटेबल 4 को हमें चूज करना है, दैट इज सिलेक्शन, ठीक है। आफ्टर सिलेक्शन कम्स प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब मैचिंग द एबिलिटीज, स्किल्स एंड इंटरेस्ट्स, मैचिंग द एबिलिटीज, स्किल्स एंड इंटरेस्ट्स of the candidate with the requirements of the job, और उसके बेसिस पे assigning them suitable job position, this is called placement। अगर कैंडिडेट के इंटरेस्ट और एबिलिटी के हिसाब से हम उन्हें प्लेसमेंट देंगे तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट प्लेसमेंट गोज अ लॉन्ग वे इन बिल्डिंग अप अ कंपीटेंट एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। देन ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग भी कहते हैं इसे। आपको याद है आपका सेशन के बिगिनिंग में मैंने भी ओरिएंटेशन ली थी पहले, डू यू रिमेम्बर? यस सर। तो मैंने क्या किया था उसमें, ओरिएंटेशन में क्या बताया था आपको? कि क्या क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे स्टडी करना है, टिप्स दी थी उसकी, टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। सिमिलरली whenever new employees join in an organization, now these employees may have worked in other organizations, but इस organization में तो new है ना वो, तो अच्छी organizations एक orientation program conduct करती हैं उनके लिए, in which they are introduced to the organization, उन्हें organization के बारे में बताया जाता है, organization के objectives, policies, procedures के बारे में बताया जाता है, so that जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करने आ रहे हैं उसके बारे में उन्हें पता तो हो, तभी तो वो बिलोंग फील करेंगे वहां पर। फिर रूल्स के बारे में बताना, जब तक हम उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स बताएंगे नहीं, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट देम टू फॉलो दोज रूल्स, तो वो रूल्स बताना। उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज के बारे में बताना, वॉशरूम्स कहाँ पर हैं, ड्रिंकिंग वाटर कहाँ पर अवेलेबल है, अगर कंपनी कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है एम्प्लॉइज को, तो वो किस टाइम मिलेगा, कहाँ से उन्हें लेना है, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में, कई कंपनीज में रिक्रिएशन रूम्स होते हैं जहां पर एम्प्लॉइज अगर बीच में थक गए हैं तो जाकर रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ी देर टेबल टेनिस खेल लिया, कैरम खेल लिया और फिर थोड़ी देर बाद वापस आ गए अपनी सीट, तो वो रिक्रिएशन रूम्स कहाँ पर है, कितनी देर के लिए एम्प्लॉइज वहां पर जा सकते हैं, ये सब उन्हें फैसिलिटीज के बारे में बताना। दूसरे एम्प्लॉइज से इंट्रोड्यूस करवाना, सो दैट दे स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल। उन्हें उनकी जॉब ड्यूटीज के बारे में बताना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताना, ठीक है। ऑल दिस इज डन टू हेल्प देम एडजस्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट एंड स्टार्ट वर्किंग इफेक्टिवली। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो पहले उसने बेशक कहीं पे काम किया हो या नहीं किया हो, एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने पे वहां पर एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी तो वो कम टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। क्लियर? Yes sir. So what are the objectives of orientation? First, to familiarize the new employee with the organization objectives so that the new employee may harmonize his or her individual objectives with them and start working towards their achievement. अगर हम उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएंगे ही नहीं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दे विल वर्क फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स। Then, second, to build up the new employee's confidence in himself or herself as well as in the organization. To give necessary information to the employee about location of workrooms, canteen, other facilities, leave rules, rest period, etc. To develop a feeling of belonging and loyalty. To ensure that the new employee does not form a false impression, because first impression is a long lasting impression.
अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, आप पहले दिन वहां पर जाते हो और आपको कोई काम बता नहीं रहा है, कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा रहा है किसी से, सीधे आपको बताया गया ये आपकी सीट है, बैठ जाओ, लाकर कुछ फाइल्स रख दी गई, आपको बोला कि प्रोसेस करो इन्हें, हाउ विल यू फील? Sir, confused and will think कंफ्यूज्ड, that लॉस्ट, company is not a good business as an organization. yes, lack of confidence, and maybe you won't feel like coming to that office next day. ऑन द अदर हैंड, आपने एक कंपनी को ज्वाइन किया, पहले दिन आपको वेलकम किया गया, आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया लोगों से, आपको काम समझाया गया, फैसिलिटीज के बारे में बताया गया, पहले 2-3 दिन ये सब चलता रहा, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके काम देना शुरू किया. नाउ हाउ विल यू फील? Sir, better. Very good. You will feel belonged to the organization. ठीक है? So this is the purpose of orientation. Any doubt up to here? No, sir. We stop here for now. If anyone has any doubt, you can click on raise hand. Okay, thank you.